Hello YouTube family, friends, relatives, subscribers, friends. This is Janak Bhagat. Today I come with another video of delayed marriage in Hindi. It's my first time making such a video. It's a request of one of our subscribers. So forgive my pronunciations and funny pronunciations. I've never done a Hindi video. I don't speak Hindi very much, and I've tried to look for subtitles of the previous video or to make, but I can't make it because I can't read or write Hindi. So I decided that I'll make another video for you. So probably there'll be different cards in this video, but the concept is the same for delayed marriage. I might mix English with the Hindi, so forgive me for that. It's exciting and it's worrisome. Okay. I thank myself for being here. I thank Ricky for being here. I thank the person watching this video for being here. I cast aside my ego and I request the same from you. So why do we delay in our marriage? What happens? What are the circumstances? वो circumstances क्या है marriage को delay करता है? So five of abundance. I'll first speak it in English and then I will say in Hindi. There are times when everyone needs a hand. Your angels want you to know that you need go through your current challenges alone. Accept the help of those around you. The situation you're experiencing is temporary. This may not be the right time to become self-employed. Be patient. So हम सबको हेल्प चाहिए जब भी ये सिचुएशंस आते हैं मैरिज के और लाइफ के, तो तब आपको दूसरा का सुनना पड़ता होता है. But it depends also that how you want to listen to them. आपको कैसे उसको सुनने का है. Let's send Ricky first for this. ये Ricky एक्सेप्ट करिए और ऊंडे श्वास लो और रिलीज करो. क्यों मैरिज डिले होता है लाइफ में? हमने क्या चॉइसेस लिए थे पहले?
और जब आप डिले मैरिज कहते हैं तो आपके लिए डिलेड मैरिज कितना एज तक होता है? क्योंकि लाइफ में लोग 22 to 25 इयर्स में मैरिज करते हैं और दूसरे लोग कैटेगरी है जो 25 to 32 तक मैरिज करते हैं, फिर 32 तक वो लोग को डिलेड मैरिज लगता है। और इफ़ आप बियॉन्ड हो देन दैट इज़ डिलेड मैरिज। बट आई बिलीव, मेरे को ऐसे लगता है कि 30 इयर्स तक डिलेड मैरिज नहीं होता ऐसे, क्योंकि बहुत लोग अब इस टाइम में मैरिज यही एज में होता है, 28 to 30, 28 to 30। और जो लोग बिफोर मैरिज लंबी रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग को डर बेस जाता है, फिर वो लोग ट्राई नहीं करते दूसरी और रिलेशनशिप के लिए। तो हम रेकी सेंड करने वाला हूँ मैं, इसलिए जो आपने दूसरा रिलेशनशिप किया हुआ है और वो सक्सेस नहीं हुआ है तो ये रेकी आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा। रिलैक्स, बहुत इमोशंस है अभी और ये इमोशंस बहुत रिप्रेस्ड है, सो पेनफुल भी है। Three of thought. Loving angels surround you to heal and comfort you. The sadness you feel will fade away in time, and then you will be able to see clearly how important this situation has been for your spiritual growth. Take the time you need to forgive yourself and others so that you can embrace the future with joy. So ये कार्ड बोलता है कि जो भी हुआ है वो तो हो ही गया है, अब क्या होने वाला है। अब आपको ऐसे थॉट करने का है कि अब आप क्या करोगे। See, that is what is important, right? अब क्या करोगे आप। और वो जो इमोशंस जो है, सैडनेस का, डिप्रेशन का, डिसअपॉइंटमेंट्स का, फियर्स है, एंग्जाइटीज़ है, वो सब हुआ है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है। सो हम सबको फेस होने पड़ते हैं ये इमोशंस, और इजी नहीं होता है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर दो और ऐसे देखो कि ये एक ग्रोथ का सिचुएशन है, सीन है लाइफ का। और मे बी कल आप कोई दूसरे को ये ऐसे हेल्प करोगे कि you've been through this is how I did it and I'm happy now, you see. So learn it, feel, ऐसे फील करो कि ये एक लर्निंग फेज था आपके लिए। और मैं उसी बारे में रेकी मोकलने वाला हूँ अभी कि आप वो पर्सपेक्टिव आपका चेंज कर दो, जो भी सिचुएशन हुआ है पहले इसके लिए। क्योंकि जब तक आप वो सब नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करोगे तो न्यू पेज नहीं आएगा, न्यू पेज तुम्हारे लिए नहीं आएगा। बिकॉज
ये केस क्लोज नहीं किया है इफ़ यू वर इन सच अ रिलेशनशिप बिफोर। आप ओपन नहीं हो रिलेशनशिप के लिए। क्यों आप ओपन नहीं हो? फियर्स है, there are quite a bit of fears, anxiousness, anxiety, प्रिंसिपल्स है आपके, उसूल होते हैं ना, वो है आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या टाइप का गर्ल चाहिए, क्या टाइप का बॉय चाहिए, ऑल दीज थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उसमें भी ओपन माइंड रखिए आप, क्योंकि लाइफ में जब भी आप किसी को भी मिलते हो, वो लोग वैसे नहीं होते जैसे आपको चाहिए, वो बनाने पड़ता है हमको। वी नीड टू मेक इट, सो वी नीड टू टीच इट टू योर पार्टनर। वी नीड टू टीच लाइक हाउ हम जब एक डॉगी ले आते हैं घर पे, उसको सिखाते आप हमको क्या चाहिए, ऐसे ही रिलेशनशिप में हमको करना पड़ता है। ये फ़नी है लेकिन ऐसे ही ह्यूमन नेचर है। आप फर्स्ट टाइम किसी को मिलेंगे तो वो तुमको जब जैसे चाहिए वैसा नहीं होता है, हमको वो बनाना पड़ता है, और वाइस वर्सा उसको भी बनाना पड़ता है ट्रेट्स आपके लिए। सो रिलेशनशिप में वही इम्पोर्टेंट है। तो डिले इन मैरिज क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हमको क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर पार्टनर। सो अब वंस आपको वो महसूस हो जाता है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, तो इजी होता है देखने के लिए कि आप क्या करोगे। अभी जब ऐसे आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आती है पार्टनर के लिए, तो वो दूसरा सिचुएशन है जब हम उसको भी करेंगे अभी। बट फॉर नाउ फिलहाल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, जब आप पार्टनर को चूज़ करते हो तो आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हो, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ओपन माइंडेड से रखो, नॉट रिजिड रखो। क्योंकि रिजिड रखेंगे तो आप वो पार्टनर जब आएगा तो आप वो उसको कैंसिल ही कर दोगे, बिकॉज यू आर नॉट योर प्रिंसिपल्स और योर फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कीप योर सेल्फ लूज फॉर दैट। There are wonderful people who wish to help you. Opportunities are being offered to you, but you aren't noticing or trusting the gifts heaven is bestowing upon you. Look around you. Daydreaming or going within is a healthy way to get clarity as long as you act upon your dreams. वही मैं अभी बोला कि opportunities आएगी पर आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि आपका वो जो उसूलों हुए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ढूंढते हो पार्टनर में, वो बहुत रिजिड हो जाता है। तो जब कोई आता है सामने तो आप उसको सिग्नल नहीं देते हो कि मेरे को इंटरेस्ट है, बिकॉज आपको तुरंत नहीं पता, तुरंत आपने बोल दिया अंदर से कि ये मेरे को नहीं पसंद है। सो ऐसे होता है 3 महीने, 6 महीने, 1 year, 2 years and you still don't have a partner, because आप जो आप ढूंढते हो वो आपको पहली नज़र में नहीं मिलता। सो दैट इज़ द रीज़न समटाइम्स वी गेट डिले इन मैरिज। सो आई एम सेंडिंग रेकी अभी फॉर दोज टाइप्स ऑफ थॉट्स टू लूजन अप।
ओके, सो हमने ये एरिया को रेकी अभी सेंड कर लिया है। अभी हम रेकी सेंड करने वाले हैं। जो आपको प्लानेटरी प्रॉब्लम्स है न, इसलिए आपको पार्टनर नहीं मिलता है, तो रेकी मैं उधर सेंड करता हूँ अभी, तो वो भी थोड़ा आपको हेल्प करे, रेजिस्ट नहीं, प्लानेटरी रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। इसलिए समटाइम्स प्लानेटरी इवोल्यूशन, प्लानेटरी मूवमेंट्स होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं हमको, हमारा मैरिज सिचुएशन के लिए। सो आई एम सेंडिंग रेकी फॉर दैट। समटाइम्स हमारा होम होता है, वास्तु प्रॉब्लम होता है, तो भी मैरिज को डिले हो जाता है। तो मैं इसमें भी रेकी मोकलता हूँ। ऑल्दो मैं रेकी सेंड करता हूँ, लेकिन जो आप रियलाइज़ करोगे जब आफ्टर अ फ्यू सेशंस ये वीडियो को देखते ही, आप स्मॉल चेंजेस लाएंगे आपके लाइफ में और आपके होम में। मे बी दैट विल किक स्टार्ट योर मैरिज इफ इट इज़ मेंट टू हैपन इन अ पॉजिटिव वे। तो आप वो रियलाइज़ करोगे कि यू आर डूइंग सम फ्यू स्मॉल चेंजेस विद इन द हाउस, विद इन योर सेल्फ, एंड आई होप रेकी कैन हेल्प यू इन दिस लाइफ टाइम। मे बी आप दूसरे रूम में स्लीप करो। वास्तु में लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़, नॉर्थ वेस्ट का रूम में सोने का होता है। सो मे बी यू ट्राई दैट। Simply relax and let energy flow however it is. Just simply let the energy flow within your body. Stretch yourself. Make space in your body for new energies to flow in. और another issue होता है मैरिजेस में डिले क्यों होता है, वो होता है फैमिली का प्रॉब्लम्स, फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, पितृ प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके लिए भी मैं रेकी अभी सेंड करने वाला हूँ। सो इफ़ दैट इज़ द प्रॉब्लम, देन लेट ऑल्सो रेकी हेल्प यू इन दैट। सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब मैं रेकी सेंड करता हूँ, तो आपके लाइफ में क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, और कैसे होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो आपको देखने पड़ता है और रियलाइज़ करने पड़ता है कि आपको क्या क्या साइंस आती है और चेंजेस आती है, ड्रीम्स आते हैं, और ऐसा एंजल्स का साइंस आते हैं। आपको वो रियलाइज़ करने पड़ते हैं, तो आपको चेंजेस दिखाएंगे।
सो आप जो मेल हो तो आपको भी नॉर्थ वेस्ट रूम अच्छा होता है, बट समटाइम्स बीइंग अ मेल एंड यू आर लेट, इज समथिंग वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए. I'll pick a card just so that I'm double confirming what message I'm getting. So some males, this is the card of messenger of emotions. So sometimes males also are sensitive, introverts, shy, just like women, some women. For such a person to relationship के लिए, जब आप ऐसे problems में हैं और आप shy हो या introvert हो, आपको socializing करना पड़ता है, because वही एक टेक्निक है और एक पाथ है. आप ओपन अप करोगे आप सेल्फ को, तो ऐसे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो आप मीट कर पाओगे. इट्स नॉट लाइक आप जाओ उधर और स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी, बट जस्ट जाओ बाहर पहले एंड सी, एंड अगेन आपको क्या चाहिए, what type of a person are you looking for, आपको characteristics क्या चाहिए. out of let's say 5 में 2 characteristics होते हैं ना, तो ट्राई करो, क्योंकि दूसरा characteristics आपको मोल्ड करना पड़ता है आपको पार्टनर में. सो बहुत रिजिड मत रखो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आपके पार्टनर्स के. कीप एन ओपन माइंड फॉर योर पार्टनर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. आई एम गोइंग टू सेंड रेकी सो दैट आपका शाइनेस जो है और ये इंट्रोवर्टनेस है थोड़ा सा ओपन अप होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ऐसे. तो ये रेकी है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. और ट्रस्ट योर सेल्फ. यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ. आप बहुत डाउट करते हैं आपका डिसीजंस में, और वो बॉडी लैंग्वेज पार्टनर को दिख जाता है, और वो ही फिर मूड ऑफ कर देता है. सो व्हेन प्रोस्पेक्ट आता है और आपका बॉडी लैंग्वेज देखते ही वो लोग नो कह देते हैं, बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस का नहीं है. सो वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. समटाइम्स हमको ये गेम खेलने पड़ते हैं, जो अब हमको स्पाउस जो चाहिए ना, तो हमको ये सब गेम खेलने पड़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है. हम जानवर जैसे ही होते हैं. अल्फा मेल और ये अल्फा फीमेल ये सब होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है, ये हमारा कॉन्शियसनेस में ही होता है. इट्स नॉट लाइक पहला ज़माना में वेयर इट वाज इजी फॉर मेल एंड फीमेल टू गेट मैरिड. अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में. तो हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इंस्टिंक्ट्स
उसको रिड्यूस हो गए। अभी ये फीलिंग है मेरे पास, ये एक मेल का है और उसको बहुत कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है अभी, और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। यू नीड टू प्ले दिस गेम टू गेट अ स्पाउस। आप जो ये गेम नहीं खेलोगे तो आपको स्पाउस नहीं मिलेंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट अवे स्पाउस को नो बोल देता है। दैट इज नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। Maybe it's the same for female, but I'm feeling a male energy right now, so इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेल है। और जिसने ये वीडियो रिक्वेस्ट की थी वो तो एक फीमेल ही है, लेकिन आई होप यू आर गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम हियर। लेट मी ट्राई इफ देयर इज एनीथिंग particularly for you who has requested this video. I think you've got most of the messages in the first part as we begun this video. I don't think I've missed anything out. I'm just picking one more card. So this card is for go within, अंदर जाओ, अंदर आत्मा को मिलो. You're a very intuitive person and many wonderful insights that lie waiting inside you. Take time to be quiet and reflect upon the desires of your heart through meditation or prayer. There is no need to take action right now. Be patient with yourself. So वही आप patient रहो और meditation करो, prayers करो. prayer मतलब since मैं हिंदी में ही बात करता हूँ अभी इस वीडियो में, तो I am assuming कि you are in India, and in India there are a lot of पूजा and विधि और ये सब कुछ होता है कुंडली हिसाब से, और ये प्रीस्ट हवन करते हैं. तो पूछो आपकी फैमिली में, मे बी आपके कुल देवी का हवन नहीं किया हुआ है probably for a very long period of time. Maybe that is what is having a problem, creating a problem for you. या तो फिर ancestral problem होता है, तो मे बी उसका कोई पूजा करा दो. अभी आई एम गोइंग टू सेंड रेकी, सो आपको एक अच्छा प्रीस्ट मिले, बिकॉज मैंने बहुत सुना है इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं ये सब में. सो आई एम सेंडिंग रेकी सो दैट आपको अच्छा प्रीस्ट मिले ये काम करने के लिए. Simply relax and let the energy flow. Relax हो जाओ, ये एनर्जी को महसूस करो. फ्लो है, एनर्जी का फ्लो बहुत है आज. समटाइम्स हमको पार्टनर को मोल्ड करने पड़ते हैं जैसे हमको पसंद हो जाते हैं. सो समटाइम्स आपको एक प्लेन
पार्टनर मिलता है और आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है और वो आपको ट्रेन करेंगे, ऐसे ही आप एक रिलेशनशिप बनती है। इफ़ आपको इस प्रोसेस को चांस नहीं देते हो तो रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। सो आपको ये प्रोसेस को चांस देना पड़ेगा, ऐसे ही आपका मैरिज हो। अगर मैरिज होता है तो जब ये डिले क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज हमको ये रिजिडनेस हो जाता है कि वी वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टनर और स्पाउस, एंड देन हमको जब ऐसा स्पाउस नहीं दिखता है और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखता है तो हम आगे नहीं बढ़ाते हैं ये टॉपिक। Yeah. So receive this Reiki so that you can open up. Okay, thank you for watching my videos and subscribing. I hope this video helps you, and I hope my Hindi was okay.